Hello everyone, welcome back to my channel. And before starting with the concept today, I just want to thank you all for liking and subscribing my channel. It is really good to see that you people are liking my work. Thank you all once again. Now coming to our today's topic, that is regression equation. Okay, so if you'll see, this question paper which I have taken is of June 2018, and the question is compute regression equation for x and y based on the following data. So this data is given to us, x and y, and we have to compute regression equation, and the question is of 6 marks. Now this question is very easy, from my point of view, and what is important is to learn the formula. If you know the formula, then the question is very, very easy. So let's see the solution part. Okay, so here in the solution, what we have to do, firstly, just write this data which is given to us for individuals A, B, C, D, and E. Now we'll write x and y. So for x, 2, 3, 2, 5, 8. For y, 3, 2, 4, 1, 10. Now we have copied x and y as it is from here, from the question given to us. Now in the next column we have to find x square. So we are going to square this column. Okay, x का square करने वाले हैं. 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 5 5s are 25, 8 8s are 64. Okay, now we are going to square the next column of y. So this is y square. 3 3s are 9, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 1 1s are 1, and 10 times 10 is 100. Okay, so x square we have calculated, y square we have calculated. In the last column we have to find xy. So we are going to multiply x and y. 2 3s are 6, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 5 1s are 5, 8 10s are 80. So it is so easy. एक्स वाई को एज इट इज लिखा, दोनों का स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर किया एक कॉलम में वाई का स्क्वायर किया, और फिर लास्ट कॉलम में दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू द टोटलिंग ऑफ दिस. हमें इनका सम निकालना है. तो अगर फर्स्ट देखें तो मैंने लिखा है n इक्वल टू 5. यू ऑल नो n हमारा नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो हमें नंबर ऑफ केसेस कितने दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 नंबर ऑफ केसेस आर गिवन टू अस. सो आई हैव टेकन n इक्वल टू 5. नाउ वी आर गोइंग टू डू द टोटलिंग ऑफ x. सो सम ऑफ x इज 2 plus 3 plus 2 plus 5 plus 8 is 20. In the same way, we'll do the sum of y. 3 plus 2 plus 4 plus 1 plus 10 is 20. Now, in the same way, we are going to do the sum of x square, y square, and xy. So, after doing the sum of these, we are going to use the formula now. We are going to put the values in the formula. Now, you'll see I have written sum of x. So, this is the sum. This is the symbol of sum. Now, let's see the formula for regression equation. So the formula is y equal to a plus bx. Okay, this is the formula. Now we have to calculate a. So the formula to calculate a is sum of y into sum of x square minus sum of x into sum of xy upon n sum of x square minus sum of x whole square. Now this is the important part. You have to note down that here we are doing sum of x square, but here it is sum of x whole square. अभी सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यही होती है. और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने भी यही गलती की थी. सो आई डोंट वांट यू पीपल टू रिपीट दैट मिस्टेक. एंड ए का फॉर्मूला निकाल लिया है. इन द सेम वे बी का फॉर्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x
into sum of y n sum of x square minus sum of x whole square. अगर ये दोनों फॉर्मूला देखें तो इनका डेनोमिनेटर इज जस्ट द सेम, दोनों का बिल्कुल सेम है. द ओनली डिफरेंस इज इन द न्यूमरेटर. दोनों के न्यूमरेटर में सिर्फ डिफरेंस है, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है. और जितने भी टर्म्स हैं ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. सम ऑफ वाई भी निकाला हुआ है, एक्स स्क्वायर भी निकाल रखा है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, कि हम कहाँ से लाएं ये वैल्यूज़. इसीलिए बोल रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि हर चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है फिर सारी चीज़ें निकालने का. तो पहले ए निकाल लेते हैं. ए का फॉर्मूला एज इट इज नोट कर लिया यहाँ पे. सम ऑफ वाई देखें तो सम ऑफ वाई हमने निकाला था 20, सो वैल्यू इज 20. नाउ सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज 106, so put the value 106 minus sum of x is 20, put the value here 20. Then sum of xy, so sum of xy is 105, put the value 105. Now n is number of cases, that is 5. Okay, so 5 into sum of x square का सम है 106. मैं यही पॉइंट बोल रही थी, आप यहाँ ये मत करिएगा कि 20 को इंटू 20 करके आपने आंसर लिख दिया है 400. नहीं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो वी हैव टू नोट डाउन दैट वैल्यू एज इट इज. तो हमने 106 लिखा यहाँ पे माइनस सम ऑफ एक्स. अब यहाँ पे सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, जो हमारे पास सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर तो हमने कहीं नहीं निकाला है, बट सम ऑफ एक्स निकाला है, राइट. तो सम ऑफ एक्स रख के उसका होल स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर. फाइन. अब इस वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद a इक्वल टू 2120 माइनस 2100 अपॉन 530 माइनस 400. सो वी गेट द वैल्यू a इक्वल टू 0.15. तो हमारे पास a हमारा 0.15 आ गया. नाउ वील कैलकुलेट b. द फॉर्मूला फॉर b इज n sum of xy minus sum of x sum of y. Now you know n is 5, sum of xy is here 105 minus sum of x and sum of y, though both are 20. So 20 into 20 upon denominator is just the same, तो आप ऊपर से पूरी वैल्यू as it is लिख दीजिए. 5106 minus 20 whole square. आपको डेनोमिनेटर बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं, अगर एक बार कर लिया तो वैल्यूज तो चेंज नहीं होगी. ऑब्वियसली 130 आया है तो यहाँ भी 130 रहेगा. फाइन. और अब आपके अपर पार्ट की बात करें तो इसे सॉल्व करने के बाद 125 आया है, एंड 125 डिवाइडेड बाय 130 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0.96. तो आपका b का वैल्यू आ गया 0.96. कितना इजी था, बस फॉर्मूला लर्न करना था एंड बाकी सब कुछ इजी. सो इन द सेम वे आपको भी सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज, और आपके 6 मार्क्स पूरे आपके हैं. नो बडी कैन टेक दैट फ्रॉम यू. ओके, अब देखिए हमने, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. नाउ a इज 0.15, y एज इट इज, प्लस b is 0.96, x वैल्यूज पुट करते ही ये है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, और या ये स्टेप करते ही फुल मार्क्स आपके. ओके, नाउ इफ यू सी डिफरेंट बुक्स तो आपको कहीं कहीं ऐसा भी दिया होता है y इक्वल टू बी अल्फा प्लस बीटा एक्स. सो इट इज नथिंग अल्फा एंड बीटा. मैंने a और b लिया है, आपको अल्फा बीटा लेना है तो आप अल्फा बीटा लीजिए, a b लेना है तो a b लीजिए, सी डी लेना है तो सी डी लीजिए, इट्स अप टू यू.